No, we will not be able to give you the exact numbers. As I said, it's operational details. But as we all know, whenever people join terrorism, they just flash their photographs and other thing, and the villagers also get to know. A missing person report is registered. On the basis of that, it is all in the open domain. You can see the recruitment in last 3 to 4 months. Actually, it has significantly come down. That is what our contention is. Sir, related question. पूरा हमले के बाद 2 वीडियोस सामने आए थे जिसमें लोगों ने बोला था कि वो फिदाई बनने जा रहे हैं। तो कितने ऐसे लड़के हम देख रहे हैं जो एक्टिव होंगे कश्मीर में, जिन पे आपकी नजर है, और खासतौर पर जैश ए मोहम्मद के कितने फिदाई हमलावर लोकल लड़के कश्मीर में होंगे? नहीं, नंबर की बात जहां तक आप बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला 2 वीडियो सरफेस किए, और यू नो व्हाट हैपेंड टू दोज 2 वीडियोस। एक जो उसमें आया था वो कुलगाम एनकाउंटर में वो मारे गए था। दूसरे बात जो है, अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो आया है वो भी उसका ऑथेंटिसिटी वी आर ट्राइंग टू चेक। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर malicious campaign in the social media trying to actually superimpose images and trying to create this kind of fear psychosis. So we should not go by that. These videos are subject to investigation. We are doing it, and we shall get back to you on this. Sir, my question is that about the Pulwama attack. You know, all the people who are the conspirators in the attack, are they now being assimilated, or are there still people who are out there? And also about the videos and the Jaish militants. We're only seeing that Jaish militants are being targeted in almost all the encounters that took place in the recent past. Does that mean that Lashkar and his are hardly they are active on the ground? It's only the Jaish which is there. So have they gone in fighting? Okay, first of all, about the people who are eliminated of the Pulwama convoy attack, as I said in my initial remarks, the main conspirators, that is Kamran and Mudassar, who are the main heads of JEM, they have been eliminated, and we had gone very, very forcefully behind Jaish e Mohammed in the last 3 weeks. Aim was to eliminate them at the earliest so that they are not able to carry out any Pulwama-like attack again. So we have reasonably succeeded in that. Like I told you, in 21 days, we have eliminated 18 terrorists, and 14 of them from Jaish e Mohammed, and 6 of them in Alpha Plus category. So that is the main focus of the security forces over the last 3 weeks, wherein we have gone behind Jaish e Mohammed and try to eliminate their top hierarchy so that Pulwama type of incident is not repeated. Now that is first. And second part of the question was? Okay, again, it's not that we have stopped looking at Lashkar and Hizbul Mujahideen. As I told you earlier, we have killed 2 of Lashkar and 2 of HM terrorists in these 3 weeks, and they are very much on our radar. And only thing is, we lay more focus on the Jaish e Mohammed for the obvious reason, so that they are not able to repeat an incident like that. Notwithstanding. और अभी आपने सुना त्राल एनकाउंटर के ताल्लुक से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बातें सामने रखी जा रही थी, और यह कहा जा रहा था कि हर तरह से पूरी कोशिश की जा रही है और मुकम्मल कामयाबी के साथ इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। जो नापाक मंसूबे हैं सरहद पार से भी, उसे हर मुमकिन और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं खबर खास में। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियती आबादी यानी मुसलमानों ने सियासी पार्टियों से आबादी के तनासुब से, यानी जितनी आबादी है उसके मुताबिक मुसलमानों को लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। हालांकि मुसलमानों की जानिब से यह मुतालबा कोई नया नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियों ने मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी के मुतालबे को नजरअंदाज ही किया है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जब बात मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की आती है तो कांग्रेस जीत और हार को ज्यादा अहमियत देती नजर आती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का दावा तो करती है, लेकिन मुसलमानों के सियासत में हिस्सेदारी के मुखालिफ नजर आती है। इन 2 बड़ी कौमी पार्टियों के अलावा
दीगर इलाकाई पार्टियों का भी मुसलमानों के तई रवैया गैर संजीदा ही नजर आता है। ऐसे में मुसलमानों को गुज़िश्ता कई सालों से सियासत में आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी का मुतालबा कब और कौन सी पार्टी पूरा करेगी, ये एक सवाल ही बना हुआ है। और अब एक बार फिर जबकि मुल्क जो है वो 2019 आम इंतखाबात की दहलीज पर खड़ा है और इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो तमाम रियासतों में, खास तौर से उन रियासतों में जहां पर जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुसलमानों की जो आबादी है, उसके तनासुब से सीटें देने की जो मांग है वो फिर से एक बार तेज हो चुकी है। तो अब हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि किन किन पार्टियों का क्या नजरिया है इस ताल्लुक से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। ओपी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, आपका इस्तकबाल है। अमित गुरु हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपका भी इस्तकबाल है। तो ओपी मिश्रा और अमित गुरु, दो बड़ी कौमी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी हैं उनकी तरफ से, और साथ ही आमिर साबरी हैं सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले हम आमिर साबरी साहब आपके पास ही आते हैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा जर्नलिस्टिक एंगल से हम पहले समझना चाहेंगे ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी इस बात को समझें कि जमहूरियत में या लोकतंत्र में हिस्सेदारी वहां के सिटीजन्स की जो होनी चाहिए, उस ताल्लुक से क्या रवैया अब तक रहा है कौमी पार्टियों का और साथ ही अपने अपने रियासत में जो बड़ी पार्टियां हैं उनका। आमिर साबरी साहब, क्या इस बार के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब मुसलमानों को ये उम्मीद करनी चाहिए ज्यादा, या फिर ये कि वो उम्मीद ना करें, मायूस ही रहेंगे सीटों के ताल्लुक से? विशाल आजम साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर के जो आपने बात उठाई है। यकीनन अब तक जितनी भी सेकुलर पार्टियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो हम इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि उनका तो वजूद और उनका पूरी नीति और रीति सब कुछ मुस्लिम विरोध पर कायम है। नारा, जैसा कि भी आपने कहा कि नारा सबका साथ सबका विकास का है, तो नारा एक अलग चीज है, नारों से पेट नहीं भरता है। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में सीटें थी, लेकिन एक भी इनको मुसलमान नहीं मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो नारा ही साबित हुआ। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं उन सेकुलर पार्टियों का जो मुसलमानों के वोट के ऊपर राजनीति करती है, और सारा के सारा वोट मुसलमानों का हर सेकुलर पार्टी चाहती है कि हमें मिल जाए। उसके बावजूद जब नुमाइंदगी की हिस्सेदारी आती है तो वहां पर शून्य नजर आता है। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है विशाल साहब जी। तो ये अफसोसनाक पहलू है। लोकसभा चुनाव 2014 का देख लीजिए। जी बोलिए। हाँ, 2014 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में आप फर्क देखेंगे। 2017 के चुनाव में एक पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए, ये कहकर के जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन मसला ये कि सिर्फ हवाई बातें क्यों होती हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का भी आपने नाम लिया, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी मानी जाती है और बहुत हद तक उसमें सेकुलर लोग हैं भी, नो डाउट। लेकिन बावजूद इसके कि अभी आपने पिछले महीने की बात है कि हरीश रावत जी जैसा इतना बड़ा कद्दावर नेता और इतना बचकाना बयान दे रहा है, अब वो भी, उनको भी हिंदुत्व की राजनीति सवार हो गई है सियासत। तो कुल मिलाकर के अब मुसलमानों को नजरअंदाज करने का या तो चलन शुरू हो गया या मुसलमानों को एक षड्यंत्र के तहत नजरअंदाज किया जा रहा है। जी ओपी ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जी, ओपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ओपी मिश्रा जी, देखिए आंकड़े जो हैं पिछले यानी 2014 के चुनाव के और 2017 के इलेक्शन के जो यूपी के हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये लगता है कि सबका साथ सबका विकास का दावा जो है वो बार बार सामने आता है, सुनने में आता है, लेकिन उस पर शायद अमल उस तरह से नहीं हो पा रहा है। ओपी मिश्रा जी, आप जो इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसको आप किस तरह का यकीन दिलाना चाहेंगे कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के वादे के तहत ही सीटों में भी उन्हें जगह देगी? क्या वो ये उम्मीद करें? ओपी मिश्रा जी। देखिए विशाल साहब, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कादिर साहब ने जो बातें कही कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता और बड़े ही तरीके से इस बात का खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है।
और रही बात सबका साथ सबका विकास की, तो हमारा जो विकास का नारा है वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय पे आधारित नहीं है। ठीक है, वो सबके लिए है। देखिए, मुस्लिमों के लिए जो 3 तलाक का मामला था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं विशाल जी, जो मुस्लिमों के लिए 3 तलाक का मामला था, जो मुस्लिम महिलाएं जो थी, उसको भारतीय जनता पार्टी लेके आई और मुस्लिम विरोधी कैसे हो गए, एक बात। और लोकतंत्र में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जहां होता है वो मुस्लिमों को टिकट देती है, और कई जीत के भी आते हैं, कई नहीं भी जीतते हैं। तो सत्ता में भागीदारी क्यों? उसके विकास के लिए, उस समुदाय के विकास के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस समुदाय के विकास की बात कर रही है। किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट न मांगते हुए भी सभी का वोट मांगते हैं। हमें सभी संप्रदाय के वोट चाहिए और सभी संप्रदाय का वोट चाहिए। हम सबके, जब आपको बिजली मिलती है तो वो किसी खास संप्रदाय को नहीं मिलती। कोई उज्ज्वला योजना के तहत आपको कोई सरकार की योजना मिलती है तो किसी खास समुदाय के लिए नहीं मिलती। आपको सड़क मिलता है तो किसी समुदाय को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो किसी समुदाय के लिए नहीं होता। वो सभी के लिए है। इसीलिए जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह चरितार्थ है, पूरी तरह धरती पे आ रहा है और लगातार आ रहा है। रही बात राजनीति में भागीदारी की, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं के लिए भी जो 50% आरक्षण है, जो उनकी 50% भागीदारी है देश में, लेकिन जो 1/3 आरक्षण का मुद्दा है, कब से लंबित है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जल्द से जल्द आए और वो पास हो, ताकि महिलाओं को भागीदारी मिले। अब महिलाओं में मुस्लिमों के लिए नहीं है कि वो मुस्लिमों के लिए नहीं है या किसी और जाति संप्रदाय के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। तो हम सबका साथ सबका विकास के नारे पे हाँ, ये केवल नारा ही नहीं है, हम कुछ चरितार्थ भी कर रहे हैं। ठीक है, ओपी मिश्रा जी, देखिए अभी आपने बड़ी अच्छी बात अपनी तरफ से की है। आपने बताया कि 3 तलाक का मुद्दा, ये अलग बात है कि 3 तलाक का मुद्दा या उसको लेकर कानून बनाना जिसके लिए किया जा रहा था, उन लोगों में कितने लोग उसके हक में थे या कितने उसके खिलाफ थे, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ कितनी बार सड़कों पर लोग आए, खवातीन यानी महिलाएं आई, लेकिन किसको सुना गया, किसे अनसुना किया गया, एक अलग बात है। लेकिन इस बारे में मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बारे में आपकी पार्टी की सीरियसनेस थी तो आपने उसको ऑर्डिनेंस लाया। लेकिन क्या आपने पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण के बारे में ऑर्डिनेंस लाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आप बात ये कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ आप मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं या इस पे काम भी करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, अगर जमहूरियत यानी लोकतंत्र का हर एक नागरिक हिस्सेदार है, तो फिर सिर्फ वो पार्लियामेंट के बाहर क्यों, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं? वो हिस्सेदारी सिर्फ, अगर लोकतंत्र एक बड़ा मंदिर कहा जाता है सबसे बड़ा, तो उसमें उसका प्रवेश क्यों नहीं? सवाल इस बात को लेकर है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि योजनाओं का लाभ किसे मिलता है किसे नहीं मिलता। अगर आपकी पार्टी, आप देखिए हर एक पार्टी में ये चीजें देखने को मिलती हैं, कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है, वो समीकरण तय करती है कहां यादव कितने हैं, कहां ब्राह्मण कितने हैं, कहां अपर कास्ट कितना, कहां लोअर कास्ट कितना, है ना, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। तो इस स्ट्रैटेजी मुसलमान क्यों गायब हो जाता है? सवाल यह है। अमित गुरु जी, आपके पास सीधा सवाल लेकर आ रहा हूं, क्या कांग्रेस से मुसलमानों को इस पर मायूसी मिलेगी? हालांकि यूपी में जो 11 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ उसमें 3 नाम आए हैं। अमित गुरु जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, शुरुआती दौर से ही, कभी हमने जाति और मजहब की राजनीति नहीं की। और जातिगत जो आपने कहा कि मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से दिया जा रहा है, हमने इस पे हमेशा काम किया है। और अभी आपने बताया भी कि हमें 11 में से 3 उम्मीदवार तभी हम लेके आए हैं। इसके पहले भी हमने लगातार मुस्लिम वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग को भी जिस तरह की भागीदारी रही है, हमने सबको सम्मानजनक सीट देने का काम किया है और जो लोगों को चुनाव लड़ाया और संसद में भेजा भी है। हाँ, आप जिस मसले पे डिबेट कर रहे हैं ये बिल्कुल ही वाजिब है। और हम आपको बता दें, 1957 में पहली बार जो है सबसे कम 23 सांसद लोकसभा में पहुंचे थे मुस्लिम जी, और इस बार जो है 2014 के उसमें 22 सांसद पहुंचे हैं। तो जो शुरुआती दौर में आंकड़ा था और फिर आज ये आया है, तो निश्चित तौर पे कुछ इस तरह की चीज आई है जहां से भागीदारी कम आपको दिख रही है संसद में। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जैसे आपने कहा कांग्रेस जो है हमेशा जीत और हार के नाते जो है इस तरह की उपेक्षा कर देती है, इसका मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं खारिज करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जीत और हार से अपना प्रत्याशी तय नहीं करते, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को हम लाते हैं। जो जिताऊ उम्मीदवार होते हैं स्वच्छ छवि के होते हैं, जाति उनका आधार कभी नहीं बनता। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास के साथ 3 तलाक की लड़ाई लड़ रहे थे। आप इनसे पूछिए 2014 में इसी उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर इन्होंने कितना लोकसभा उम्मीदवार बनाया था मुस्लिम समुदाय से कितना बनाए थे? मैं पूछूंगा, वो बात ऑलरेडी आ चुकी है, अब चूंकि वो पास्ट है, मुझे फ्यूचर में जाना है, यहां से आगे क्या होगा इस बारे में मैं बात करूंगा। सवाल सिर्फ इस बात का है कि जब हर किसी प्रांत में, हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइन्यूट चीजें तक देखी जाती हैं, और उस बड़े समुदाय को जिससे लगता है कि एक बड़ा वोट यहां से हमें मिल सकता है, उसको खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं स्क्रीन पे। उसको कई लोगों से जो जानकार हैं, कुछ लोग इसे ड्रामा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे दिखावा कहते हैं, कुछ भी हो, लेकिन अगर उस समुदाय को, जो इस देश का नागरिक है, समुदाय जी, उसे हिस्सेदारी मिलती है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से मुसलमानों को कम से कम क्या 10 सीटें एक पार्टी नहीं दे सकती? सवाल सिर्फ ये है, कम से कम 10 से 15 सीटें नहीं दे सकती? क्या इतनी भी उनकी आबादी नहीं है? क्या इतनी उनसे आपको अपेक्षा नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल दे सकती है। अभी 2014 में हमने मात्र उत्तर प्रदेश में ही 10 लोकसभा के टिकट दिए थे। देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं, जहां तक जातिगत आंकड़े का बात है, न सिर्फ मुस्लिम की बात, जो इस तरह से आज क्षेत्रवाद और जातिवाद जिस तरह से कुछ हिंदी भाषी राज्यों में जिस तरह से बढ़ा है, और जिस तरह से जातिगत आधार पर टिकटों का वितरण हो रहा है, कहीं न कहीं से हर दलों की मजबूरी बनी है। लेकिन उससे इतर हटके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस मजबूरी को खारिज करते हुए हर समुदाय से, हर जाति से, हर धर्म से उचित भागीदारी देने का हमेशा प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, आमिर साबरी साहब आपके पास आ रहा हूं। जो इन दोनों के तर्क हैं, बीजेपी की तरफ से ओपी मिश्रा जी के, कांग्रेस तरफ से अमित गुरु जी की, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि मुसलमानों का पार्टिसिपेशन और मुसलमानों की हिस्सेदारी ये दे पाएंगे? चूंकि वो हिस्सेदारी प्रोपोर्शन में हो, इसको लेकर जिन समुदायों के लिए जरूरी है वहां आरक्षण तक भी है, लेकिन मुसलमानों को तो ना आरक्षण है और ना उन्हें पार्टियां जो है वो सीटें देती हैं, जैसा कि नजरिया देखने को मिल रहा है। तो क्या सिर्फ यही हो कि जब खाना बन जाए तो आपको हम बांट देंगे, बनने में और बनाने में आप शामिल ना होइए? विशाल साहब, अभी जैसा हमारे ओपी शर्मा जी भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि 3 तलाक की बात को लेकर के, तो क्या मुसलमानों में सिर्फ 3 तलाक की समस्या थी? छोड़ दीजिए, बड़ा सवाल ये है। दिया मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं बता रहा हूं आपको, मुसलमानों में शिक्षा पे काम करा भारतीय जनता पार्टी ने जी। 5 साल पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गई, 2 साल उत्तर प्रदेश सरकार को हो गई। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए शिक्षा पर काम हुआ? अभी बेरोजगारी पर काम हुआ? हम लोग बहुत काम है, माइनॉरिटी सिर्फ इस पे देखना है कि आप हिस्सेदारी कितनी दे रहे हैं, हिस्सेदारी कितनी दे रहे हैं लोकसभा इंतखाबात में। आप सुन, प्लीज डोंट डिरेल दिस टॉपिक, प्लीज डोंट डिरेल दिस टॉपिक। शिक्षा में सुधार बहुत किया हमने, नहीं सभी मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में जहां पर रियासतों में जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, ओपी मिश्रा जी प्लीज, ओपी मिश्रा जी, साबरी साहब आपसे मेरी अपील है, आपसे मेरी अपील है, उसको भारतीय जनता पार्टी की कहां ले गए आप साबरी साहब इस बात को? धारा से लगातार जोड़ने का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसके आबादी के हिसाब से उसे सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सवाल सिर्फ ये है, कोई मुद्दा अलग नहीं है अभी। ओपी मिश्रा जी, अरे देखिए, जैसा कह रहे, देखिए मैं मानता हूं कि भागीदारी और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जितनी भागीदारी होगी वो अपनी बात ठीक से रख पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो उस समुदाय की स्थिति है और उसमें हमारी सरकार ने लगातार सुधार करने का काम काम किया। आप देखिए, शिक्षा में उत्तर प्रदेश के मदरसे थे, उनमें नया सिलेबस लाके और आज ये टॉपिक है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा था, उसको हटाकर बीजू जनता दल ने, नवीन पटनायक ने ऐलान कर दिया कि हम 33% महिलाओं को, खवातीन को सीटें देंगे। क्या बीजेपी अनाउंस करने की पोजीशन में है कि वो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए मुसलमानों का सर्टेन परसेंटेज तय करेगी? विकास से जुड़ा हुआ है कि आप क्या मुसलमानों का सर्टेन परसेंटेज बीजेपी तय करेगी सीटों में? क्या कांग्रेस तय करेगी मुसलमानों का सर्टेन परसेंटेज जब सीटें दी जाएंगी, उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? प्रयास किया है कि नहीं किया है? मेरा सवाल सिर्फ ये है सर, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या दूसरी पार्टी पूरा प्रयास करेगी? एक सर्टेन परसेंटेज का अनाउंस करना चाहिए कि हम इतने परसेंटेज, जो बड़ी आबादी है अकलियतों की सबसे बड़ी पार्टी का, हम इतनी सीटें देंगे। जी
देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में देखिए ये चुनाव जीतने का होता है लोकसभा, और कोई पार्टी ये बोले कि हमने मुस्लिम को मुसलमान के टिकट दिया, वो भी वहां जीतने के नाम पे टिकट पार्टी की बात कर रहा हूं ना, आप दूसरी पार्टी पे मत जाइए ना। मैं अमित जी से कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूं, आपसे बीजेपी के बारे में। मैं भी अपनी बात कर नहीं, मैं भी अपनी बात कर रहा हूं। जहां लगेगा हार गए, इसका मतलब क्या? जहां लगेगा कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। हाँ जी विशाल जी, अभी देखिए हमारा उम्मीदवार जीतेगा, वो शानदार तरीके से रखने और कहने से अच्छी जरूर लगती है, उसको बातें सुनने में अच्छी जरूर लगती है, लेकिन जब आप वक्त की कमी हमारे पास है जी, देखेंगे जमीनी हकीकत जानेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है हमारे पास, अभी उन्होंने कहा हम देंगे, अभी मदरसा शिक्षकों की बात दूंगा, मैं बहुत वाजिब बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साबरी साहब आपका, ओपी मिश्रा जी आपका भी, अमित गुरु जी आपका भी। आपने वादा किया है कि ये एक जरूरी चीज है और लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले। यहां बात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में उम्मीदवार बनाने के फिलहाल है। आप बेशक रीजनिंग कीजिए, आप छांटिए कि कौन जिताऊ है कौन नहीं है, लेकिन उनको सीटें दीजिए, यही मुतालबा है। उम्मीद करनी चाहिए कि शायद इस पर पार्टियां काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और ताजा और अहम खबरों के लिए आप लगातार बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।